Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important topic, that is retained earnings. Till now, in my previous video related to sources of business finance, you have heard this word retained earning number of time. But in this particular video, your all doubts regarding this particular concept is going to be clear. So please pay attention while watching my video. Okay? So as you can see in this picture, that boy is carrying a part of this dollar. So let's assume that it is a profit, and boy is carrying a part of this profit. So retained earning refers to a part of profit which is not distributed among the shareholders in the form of dividend, but it is retained in the business for use in the future. So retained earning जो है वो एक प्रॉफिट का पार्ट होता है जिसको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में नहीं दिया जाता है और उसको बिजनेस में ही रख लिया जाता है उसके फ्यूचर यूज के लिए. ओके, सो रिटेन्ड अर्निंग इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस that are not distributed as dividend to the shareholders but are reserved or retained for reinvestment back into the business. So आपका जो भी पोर्शन होता है प्रॉफिट का वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में ना दे करके उसको रख लिया जाता है बिजनेस के पास और उसको बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं. और जब हम इस पर्टिकुलर प्रॉफिट के पोर्शन को हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग. See, the savings which are generated internally by a company in the form of retained earning are plowed back into the company for diversification of its business. And generally, these funds are for working capital, fixed asset purchases or allotted for debt obligations. So, retained earning जो है वो आपके वर्किंग कैपिटल की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं, आपके फिक्स एसेट्स को परचेज करने में हेल्प करते हैं, मतलब फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, और जो भी कंपनी के डेट ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी डेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि कंपनी को पे करनी है उसको पूरा करने में हेल्प करता है. मोर ओवर, retained earning also increases the value of shareholders in case of growing firm. So आपके जो retained earning है वो शेयर होल्डर्स की वैल्यू को भी, शेयर होल्डर्स का जो भी शेयर्स है उसकी वैल्यू को भी इंक्रीज करते हैं अगर वो फर्म ग्रोइंग फर्म है. सी retained earning आपके यहाँ पे प्रॉफिट के पर्टिकुलर पोर्शन को फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है. सो अगर आपका ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है अगर बहुत अच्छा है, गुड है, उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बेटर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, तो इट विल गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर एंड इट विल बी गोइंग टू increase the value of shareholders also. With this we have few features of retained earning. First is cost of financing. See, the cost of raising finance from various sources is different. Means if you are raising finance with the help of equity share, it will have different cost. If you are raising your funds from taking loan from any commercial bank or financial institution, you have to give interest. It will be different type of cost. So finance manager always prefer the sources with minimum cost and this will be the best option. Retained earnings जो है ये best option रहता है. यहाँ से आपको पैसा रेज करने में, कैपिटल रेज करने में बहुत आसानी होती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं होता है. Another feature of retained earning is flotation cost. See, flotation cost means the cost which is involved in issue of securities such as brokers commission, underwriters fees, expenses on prospectus etc. So flotation cost एक ऐसी cost होती है जो कि जब भी आप किसी सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं उसमें ये इन्वॉल्व होती है. जैसे कि आपकी ब्रोकर्स कमीशन हो गए, अंडरराइटर की फ़ीस हो गई, एक्सपेंसेस हो गए प्रॉस्पेक्टस के, तो ये सारी फ्लोटेशन कॉस्ट होती हैं. सो जब आप डिफरेंट सोर्सेज से फाइनेंस उठाते हैं, रेज करते हैं, तो आपको इस फ्लोटेशन कॉस्ट को देना पड़ता है. सी, इफ़ यू आर raising funds with the help of equity share, then you have to give underwriters fees, you have to give brokerage commission, you have to expend on issuing of prospectus. So ये सारे आपको expense देने पड़ते हैं. But if you are using the retained earning, it will avoid all these
flotation cost. Okay. Another feature of retained earning is control. See, कंट्रोल कंसिडरेशन आपको ये बताता है कि आपका कंपनी के मैनेजमेंट पे कितना कंट्रोल रह जाता है. सी, इफ़ यू आर यूजिंग if you are using equity shares for raising funds, then what is going to happen? It will dilute the control of equity shareholders from the company. So while use of retained earning, it avoids the possibility of change or dilution of control of existing shareholders that results from issue of new issues. So अगर आप इक्विटी शेयर से पैसा उठाते हैं, कैपिटल रेज करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करने हैं? आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका डाइल्यूशन हो जाएगा या चेंज हो जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के कंट्रोल में. बट अगर आप यहाँ पे पैसा रिटेन्ड अर्निंग से उठाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है. Another feature of retained earning is legal formalities. See, retained earnings में आपको कोई भी legal formalities नहीं करनी पड़ती हैं. It just requires a resolution to be passed in the annual general meeting of the company. See, अगर आप बाकी किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा उठाते हैं, पैसा कैपिटल रेज करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, बहुत ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने होते हैं. बट अगर आप पैसा अपने रिटेन्ड अर्निंग से उठा रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती हैं. बस जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें एक रिजोल्यूशन पास करना होता है. ओके. विद दिस वी हैव फ्यू एडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. फर्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो आपकी परमानेंट सोर्स है. ये आपकी तब तक बिजनेस में लगी रहती है जब तक बिजनेस वाइंड अप नहीं होता है. Another advantage of retained earning is it does not involve any explicit cost in the form of interest or flotation cost. As I already told you in the features of retained earning कि आप retained earning से जो भी पैसा रेज करते हैं उसमें कोई भी flotation cost नहीं आती है. Another advantage of retained earning is that there is a greater degree of operational freedom and flexibility as the funds are generated internally. So जब आप retained earning से पैसा या कैपिटल अपनी रेज करते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट फ्रीडम होती है, कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने ऑपरेशंस को करने में, क्योंकि यहाँ पे आपने पैसा जो है वो इंटरनली जनरेट किया होता है. ओके. आपके कंपनी के अंदर से ये पैसा जनरेट हुआ होता है. ओके. सो आपको यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम होती है अपने ऑपरेशंस बिजनेस के करने के लिए. अनदर एडवांटेज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज दैट it enhances the capacity of the business to absorb unexpected losses. So आपके जो retained earning है वो आपको हेल्प करता है आपके अनएक्सपेक्टेड जो लॉसेज हो गए हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए. Another advantages of retained earning is that it may lead to increase in the market price of the equity shares of the company. See, as I already told you in the features of retained earning कि यहाँ पे ये आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू को भी इंक्रीज़ कर देता है अगर आपकी जो फर्म है वो ग्रोइंग फर्म है. सो इसी से आपकी मार्केट प्राइस जो है वो इक्विटी शेयर्स का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है. ओके. अगर आपने अपना पैसा जो है अपना रिटेन्ड अर्निंग जो है वो सही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट किया है. ओके. विद दिस वी हैव डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑल्सो. First is it is an uncertain source of funds as the profit of business keeps fluctuating. See, यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो कंपनी का फ्लक्चुएट होता है. कभी आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, कभी आपका प्रॉफिट बहुत कम होता है. इसीलिए यहाँ जो सोर्स ऑफ फंड्स है वो अनसर्टेन है. कभी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, कभी बहुत कम पैसा मिलेगा. ओके. Another disadvantage of retained earning is that high retention ratio may cause dissatisfaction amongst the shareholders as they would get lower dividend. High retention ratio का मतलब होता है कि कंपनी अपने पास पैसा ज़्यादा रोक के रख रही है और हमारे शेयर होल्डर्स को कम पैसा दे रही है. सो इससे क्या होता है? शेयर होल्डर्स के बीच में डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है क्योंकि उनको लोअर डिविडेंड मिल रहा होता है. ओके. Another disadvantages of retained earning is that if the opportunity cost associated with these funds is high, it may lead to suboptimal use of the funds. So as I already told you कि आपके different sources की
डिफरेंट कॉस्ट होती है जब भी आप फंड्स रेज करते हैं। अगर इस फंड्स के साथ आपकी अपॉर्चुनिटी की कुछ ना कुछ एसोसिएट है तो यहाँ पे आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, सब ऑप्टिमल यूज़ ऑफ फंड्स होता है। ओके, सो well, many firms fail to recognize the opportunity costs associated with these funds and which result in suboptimal use of the funds. Okay, another disadvantage of retained earning is that conservative dividend policy leads to huge accumulation of retained earnings leading to over capitalization. कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है यहाँ पे कंपनी जो है अपने पास ज़्यादा पोर्शन प्रॉफिट का रख रही है और हमारे शेयर होल्डर्स को कम पैसा दे रही है। इससे क्या होता है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे अपने कंपनी में लगाती जाएगी तो उससे क्या होगा, उसका कैपिटल जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो एक्यूमुलेट ही होती चली जा रही है। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज दैट देयर इज इम्बैलेंस्ड ग्रोथ एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रिमेन इन द सेम इंडस्ट्री। सो जब आपका जो प्रॉफिट है वो एक ही इंडस्ट्री में बार बार लगाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इम्बैलेंस्ड ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया गया है। ओके, सो आई होप आपको रिटेन्ड अर्निंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ go through your book, read it from there, and if still you have any doubt regarding this particular concept, then please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.